Hello friends, welcome again to Vidyarthi Spot. Let's discuss computer assisted instruction today. Computer assisted instruction refers to the use of computer or any technological device like laptop, tablet, smartphone to deliver support or enhance teaching and learning. It's called computer assisted instruction. It means when we are using, we have studied yesterday about program instruction and its types. In that process or teaching method, that paper or booklet was used earlier. Nowadays we can make it by slides or by use of computer also, but later the computer assisted instruction was used in the field of education to support teaching and learning. It blends technology with pedagogy to improve educational outcomes. What we have decided earlier, that these type of objectives we have to gain after this teaching and learning process. Then we gain that educational outcomes with the blend of technology and pedagogy in the teaching learning process, and that technology we use computer. The computer assisted instruction was advanced by Lawrence Stiluro. He used the digital platform for improving teaching learning among students. Now let's see what is the meaning of computer assisted instruction. Computer assisted instruction, we have discussed earlier, that refers to use of computers to provide instructional materials. All those materials that a teacher gives in the classroom is instructional material. But here, beside the classroom, these instructional materials can be given by the use of computer, and a teacher can monitor the learning process. It includes both hardware and software application used to aid or deliver education. As we all know, for applying any type of software application for teaching and learning, it is always necessary for a hardware to be present. इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू अगर हम बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं, उनके टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करा रहे हैं, या किसी तरीके की इंस्ट्रक्शन को डिलीवर कर रहे हैं, कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, तो देयर इज अ नीड ऑफ हार्डवेयर टू, बिकॉज सॉफ्टवेयर अलोन कैन नॉट वर्क. It will always be used with the help of hardware. What are the objectives of computer assisted instruction? आजकल डिजिटल एरा है, तो कंप्यूटर का, स्मार्टफोन का हर कोई यूज कर रहा है अपनी पढ़ाई के लिए. और क्यों यूज कर रहा है? फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग. अपने आप, अपने स्पीड के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी लर्निंग कर सके और एक्सपीरियंस कर सके. एक इंटरैक्टिव इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है टू सप्लीमेंट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड. कभी कभी इसकी ज़रूरत, टीचर इसे यूज़ कर सकता है किस लिए? सप्लीमेंट करने के लिए ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड. हालांकि हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, but still in the advanced era of this technology, we use technology to supplement our teaching and learning process, to make students understand the content in a better way, to do their self learning, to do individualized learning, to enhance conceptual understanding through visuals and simulations. We always know that जब भी हम विजुअल्स का यूज करते हैं, तो ये बच्चे के माइंड में ज्यादा असर डालती है. बच्चा उसे ज्यादा जल्दी याद कर लेता है. बस सुनने से क्या होता है, एक ही सेंस ऑर्गन, बस ईयर का इस्तेमाल होता है. विजुअल से दो सेंस ऑर्गन्स का यूज होता है, आईज एंड ईयर. सो जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल होगा, बच्चा उतनी ज़्यादा ग्रैस्प कर सकता है और वो रिटेन कर सकता है अपनी मेमोरी में. काय का यूज़ करने से, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करने से बच्चा सेल्फ पेस्ड लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की तरफ बढ़ता है. अपने स्पीड, अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से और खुद डायरेक्शन वो चूज़ कर सकता है लर्निंग के लिए. काय के कुछ की फीचर्स हैं.
जैसे सेल्फ पेस्ड के बारे में मैंने बता दिया, बच्चा प्रोग्रेस करता है अपनी स्पीड से। जैसे पहले ही हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था कि हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो अपनी स्पीड से कैच कर सकते हैं लर्निंग को। इंटरैक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट्स इंगेज थ्रू सिमुलेशंस, क्विजेस एंड एनिमेशंस। आजकल कई तरीके की आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिलेंगे या सॉफ्टवेयर ऐसे मिलेंगे जिसमें छोटे छोटे क्विजेस दिए होते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। आप जो टॉपिक तैयार करना चाहते हैं या बच्चा कोई जो टॉपिक तैयार करना चाहता है उससे रिलेटेड क्विजेस वो उसमें ढूंढता है, और उसका क्वेश्चन आंसर सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप से उसे सॉल्व करता है। और वो सॉल्व करता है, जब आंसर करता है अगर सही आंसर है तो उसको पता चल जाता है कि आंसर सही है, अगर गलत है तो उसको एक्सप्लेनेशन और फीडबैक भी साथ साथ मिलता है। इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में भी होता था, लेकिन उसमें कंप्यूटर की मदद नहीं ली जाती थी। आज के समय में कंप्यूटर की मदद से, क्विजेस और एनिमेशंस की मदद से, सिमुलेशंस की मदद से इंटरैक्टिव लर्निंग स्टूडेंट को कराई जाती है। मल्टीमीडिया के इंटीग्रेशन से, मल्टीमीडिया को यूज करने से, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स यूज करने से बच्चे को हर तरीके से कई एस्पेक्ट से समझने में मदद होती है। इस पे भी इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, जैसे कि मैंने क्विज के एग्जांपल दिया। ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं, छोटे बच्चे के लिए भी एप्लीकेशंस हैं, पढ़ाई के लिए खान एकेडमी है। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर फीडबैक, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसे करके फीडबैक मिलता रहता है बच्चा जो भी सॉल्व करता है। उसमें गेम्स भी हो सकते हैं, गेम के तरीके से भी बच्चा सीख सकता है, ड्राइंग एंड पेंटिंग के तरीके से भी सीख सकता है। एक एप्लीकेशन है डुओलिंगो, जो जिसमें बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, तो लैंग्वेज सीखने की भी एप्लीकेशन हो सकती है, गेमिंग की भी एप्लीकेशन हो सकती है। खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। लर्निंग की भी एप्लीकेशन हो सकती है, क्विजेस की भी एप्लीकेशन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आज के टाइम में है। काई कितने टाइप के होते हैं? काई का कोई पर्टिकुलर इस तरीके का टाइप नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल चूज करते हैं और किस टाइप का कंटेंट तैयार करना चाहते हैं। जैसे कि मैथ्स प्रॉब्लम के लिए हम अगर कोई एप्लीकेशन या कोई क्विज चूज कर रहे हैं तो उसमें ड्रिल और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बार बार उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, रिपीटिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कोई ट्यूटोरियल चूज करते हैं, कोई सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हमें अगर किसी चीज के बारे में, किसी कंटेंट के बारे में चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप टीचिंग, जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग ऐप मैंने बताया डुओलिंगो, स्टेप वाइज टीचिंग होगी उसमें, तो वो सीख सकते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो का एक कॉपी, सिमुलेशन, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है जैसे साइंस लैब्स वगैरह हैं, उसकी एक कॉपी आपको दिखाई जा सकती है सीखने के लिए। एजुकेशनल गेम्स का मैंने बताया, लर्निंग थ्रू प्ले एंड कंपटीशन, गेम खेलकर और compete कर कर एक दूसरे से उसमें एजुकेशन हम सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग करके कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग करने से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं, बायजूस का ऐप है, खान एकेडमी का ऐप है, या इस तरह के और कोई ऐप है जिससे स्कूल के बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट भी अवेलेबल होते हैं, क्विजेस भी अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम भी कराए जाते हैं। लैंग्वेज ऐप के लिए डुओलिंगो बहुत अच्छा है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, जैसे मूडल है, मूडल में आप कंटेंट, आप वहां से कंटेंट ले भी सकते हैं, अपना खुद का कंटेंट डाल भी सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या से जुड़े हैं या कहीं के स्टूडेंट हैं तो भी आप डाल सकते हैं। गूगल क्लासरूम का यूज कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम एक वर्चुअल क्लासरूम है जिसमें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं। बच्चे, टीचर बच्चों के लिए कंटेंट भी डाल सकते हैं, असाइनमेंट्स डाल सकते हैं, उसमें मार्किंग भी, इवेल्युएशन भी की जाती है। गूगल क्लासरूम एक वर्चुअल क्लासरूम का एग्जाम्पल है। मूक है, मूक में मूक कोर्सेज के लिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारे इंडिया में स्वयं का प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। इसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज प्लस डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि लर्निंग हम कर सकते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू भी, ट्यूटोरियल के थ्रू भी, साइमुलेशन के थ्रू भी।
मल्टीमीडिया के थ्रू कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, हमें फीडबैक ऑन द स्पॉट फीडबैक भी मिलता रहता है, मोटिवेट भी होते रहते हैं, बच्चे मोटिवेट भी होते रहते हैं। स्कूल्स ये कहाँ यूज़ होता है? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूज़ होता है। हर फील्ड में यूज़ हो सकता है काई, है ना? अब पहले तो इसको एजुकेशनल फील्ड में यूज़ किया गया था, लेकिन आप देखें तो हर फील्ड में ये यूज़ किया जा सकता है। डिस्टेंस लर्निंग के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए क्विज़ेज़ बनाए जा सकते हैं। तो हर फील्ड में यूज़ किया जा सकता है। एक छोटे से कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू अगर हम फिर से समझना चाहें तो काई के टाइप्स क्या हैं? ट्यूटोरियल, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशनल गेम्स और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आप इसके बारे में जानते हैं कि कुछ अलग से एप्स ऐसे भी हैं जो आपको पता है, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे लर्निंग कंप्यूटर के थ्रू कराई जा सकती है। आजकल स्मार्टफोन, टैबलेट के थ्रू कराई जा सकती है, तो वो भी एक कंप्यूटर का ही छोटा रूप है। बिल्कुल सारे फंक्शंस उसी तरीके के हैं। बेनिफिट आपको क्या है? कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने क्लास के हिसाब से, अपने एज ग्रुप के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं। लर्नर इसमें इंगेज्ड होता है और उसको मोटिवेशन मिलता रहता है, बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। लिमिटेशंस ये हैं कि बहुत हाई इनिशियल कॉस्ट है। मोबाइल अगर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिसके पास है, स्मार्टफ़ोन है, वही कर सकता है। तो इसका कॉस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बढ़ा देती है और स्टूडेंट जिसकी विज़न कमज़ोर हो, उसके लिए हार्मफुल है। बहुत टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस होने से क्या होता है कि स्टूडेंट बुक लर्निंग या बुक पढ़ने से थोड़ा डिस्टेंस उसका मेंटेन हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। ये ह्यूमन इंटरेक्शन को रिड्यूस कर सकता है, एम्पैथी, इमोशन को रिड्यूस कर सकता है, कम्युनिकेशन स्किल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें डिजिटल अगर इसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है, तो डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। जिसको डिजिटल लिटरेसी नहीं है जिसके पास, वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है, ये आपने देख लिया स्कूल, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, हर फील्ड में ये अप्लाई किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस हैं, मोटिवेशन को बढ़ाता है, एंगेजमेंट को बढ़ाता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग को इनकरेज करता है, कई तरीके के लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करता है। हर तरीके के लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर बेस्ड होती है काय। तो जिस तरीके का आप चूज करना चाहें, आप अडॉप्ट करना चाहें, बच्चा अडॉप्ट करना चाहे, उस तरीके का कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है, ये एनी टाइम, एनीवेयर, एनी वन कैन अडॉप्ट काय anytime. He can adopt anytime and from anywhere he can adopt, he or she can adopt. थैंक यू। ये रहा काई के बारे में। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।